20 common mistakes in maths. From my 50-year experience, what I observed, these are common mistakes done by students in each year and in each grade. Wrong, written by mostly students. In left hand side, we will write wrong statement. जो स्टूडेंट्स अक्सर गलत लिखते हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे. राइट टू बी रिमेंबर्ड. ऑन राइट हैंड साइड हम वो लिखेंगे जो इसका ठीक उत्तर है, सही उत्तर है, उसको बच्चों ने याद रखना है. मिस्टेक नंबर 1, कंफ्यूजिंग ऑफ द बेस. Solution is, what is the value of -4 square? Students write 16 and it is wrong. What is the correct answer? -4 square is equal to -4 into 4 is equal to -16. Here base is 4 only, not -4. If base is 4, this is the correct answer. If base is -4, this is the correct answer. -4 square is equal to -4 into -4 is equal to 16. But in this question base is 4. Therefore here 16 is wrong. Here answer is -16. Now mistake number 2. Incorrect cancellation of terms in fraction. इनकरेक्ट कैंसलेशन क्या है वो हम देखते हैं. स्टूडेंट्स सॉल्व लाइक दिस. 3 is cut by 3. They write answer x plus 18 over 1 is equal to x plus 18, but this is a wrong method. Now what is the correct method? Correct method is 3 दोनों के नीचे आएगा. पहले 3x के नीचे आएगा, फिर 18 के नीचे आएगा. दिस विल कट एंड आंसर विल बी x. दिस विल कट एंड आंसर विल बी 6. therefore आंसर विल बी x plus 6. and second method is, we can take a common from the numerator. take 3 as a common. x plus 6 upon 3. 3 cut, answer is x plus 6. दूसरे मेथड में हम पहले 3 कॉमन लेंगे, उसके बाद कॉमन को काट के आंसर आएगा x plus 6. ये दूसरा मेथड है, परंतु ये मेथड क्या है, गलत है. अब है थर्ड मेथड. थर्ड मिस्टेक, नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट. क्वेश्चन इज subtract a from b and students do. This is very simple. They do like this: a minus b. They write first term and subtract second term from it, and it is a wrong method. It is wrong. Now what is the correct method is b minus c. First we will write second term, then we will write first term, then we will subtract both of them. b minus a means first second term, then we will subtract first term from it. दूसरी में से पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, ये करेक्ट है. a माइनस b करेक्ट नहीं है. Now fourth mistake is invisible brackets. Question is, subtract 4x minus 5 from x square plus 3x minus 2. And students do like this. बच्चे इस तरह करते हैं, x square plus 3x minus 2 minus 4x minus 5.
वो 4x को तो मेंशन करते हैं पर 5 को मेंशन नहीं करते. इट इज रॉन्ग मेथड एंड करेक्ट मेथड इज दिस. हमने 4x माइनस 5 को माइनस करना है, इसलिए इसको एक ब्रैकेट सपोज करते हैं. तो ठीक मेथड हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस in bracket 4x minus 5. Now opening bracket minus 4x minus plus 5. This is the correct answer and it is not correct answer. यहाँ ब्रैकेट नजर नहीं आ रही पर ये ब्रैकेट सपोज करेंगे तभी आंसर ठीक आएगा. फोर्थ कॉमन मिस्टेक इज इनविजिबल ब्रैकेट. ब्रैकेट नजर नहीं आती पर ब्रैकेट होती है. Five common mistake is solve 9 minus 6 into x minus 7, and some students do like this. 9 minus 6x means 42. वो 6 को x से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 को 7 से, पर हमने क्या करना है -6 से मल्टीप्लाई करना है. ये रॉन्ग मेथड है. Some students do like this. कई इस तरह करते हैं. 9 माइनस 6 वो पहले माइनस करते हैं, आंसर आया 3 इंटू एक्स माइनस 7. इट इज अगेन रॉन्ग. ये गलत दोनों क्यों है? क्योंकि हमने ये मेथड लगाना होता है. ये मेथड कहता है कि पहले b मीन्स ब्रैकेट को सॉल्व करना है और s मीन्स सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन को बाद में सॉल्व करना है. सी द करेक्ट मेथड. फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे 9 माइनस 6x और -6 इंटू -7. जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -6 इंटू -7 प्लस 42 होगा. अब आंसर आया 41 और 9 51 माइनस 6x. दिस इज द करेक्ट मेथड. दीज आर 5 मेन common mistakes. Mistake number 6. Solve 3 into 2 power x is equal to 36. Student write 3 into 2 6 power x is equal to 36. 36 can be written as 6 power 2 cancelling power x is equal to 2. But it is wrong. We will check by left hand side and right hand side. If x is equal to 2, left hand side will be 3 into 2 power 2. It means 3 into 4, which is 12, but the right hand side is 36. Therefore x is equal to 2 is a wrong answer. Now what is the correct answer? Given is 3 into 2x is equal to 36 or 2x is equal to 12. Dividing both sides by 3 we get this. Therefore value of x is log 12 base 2. It is values by this by calculate. Because definition of log is if 2 power 3 is equal to 8, log 8 base 2 is equal to 3. कई बच्चों को लॉग की डेफिनेशन नहीं पता, मैं बताता हूं. इफ 2 power 3 is equal to 8, 8 this side, 3 this side, log 8 base 2 is equal to 3. Similarly, if 2 power x is equal to 12, 12 this side, x this side, x is equal to log 12 base 2. This is the definition of log and its solution is this, not this. Now mistake number 7. Operations with fraction. Question is simplify this, but students do 3 into 1 3 and 3 over 5 50. वो इस तरह मल्टीप्लाई करता है, ये गलत. सेकंड स्टेप, नाउ वी हैव टू ऐड दिस. वो ऐसे ऐड करता है, ऊपर वाला ऊपर ऐड, नीचे वाला नीचे ऐड. ये भी गलत है. तो करेक्ट मेथड क्या है?
इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 कैन बी रिटन एज 3/1। अब मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई 3, नीचे वाला नीचे 5। मल्टीप्लाई में ऐसे होता है, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से। पर एडिशन में ऐसा नहीं होता, एडिशन में पहले एलसीएम लेते हैं। अब फर्स्ट स्टेप ठीक हो गया, अब है सेकंड स्टेप। हमने इसको ऐड करना है, तो पहले बेस सेम करना होगा। तो बेस सेम कैसे होता है? एलसीएम से। 5 और 2 का एलसीएम आया 10, इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म विल बी 3 × 2 6, 5 × 2 10। इसका एलसीएम 10 था, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 × 5 × 10। अब फर्स्ट स्टेप ठीक हो गया, सेकंड स्टेप भी ठीक होगा। 6 + 5 11/10। अगर बेस सेम होगा, ऊपर वाला को ऐड किया, 11/10 आंसर है। इसलिए ये मेथड रॉन्ग है, ये मेथड ठीक है। ऐड करना हो तो पहले एलसीएम लेके बेस सेम को करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाला सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ मिस्टेक नंबर 8। यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन। Question is solve 3/x = 6. Students solve x = 6 dividing by 3 2, and it is wrong. Second question is -2x = 8. Students करता है dividing by 2 x = 4, and correct method is these are equations. इक्वेशंस क्या होती हैं? बीम बैलेंस की तरह होती है। बैलेंस हिंदी में हम इसको तराजू बोलते हैं। तराजू में क्या होता है? लेवल सेम है तो हम दोनों साइड पे कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये इक्वल इक्वेशंस हैं। जैसे हम सामान लेने दुकान से जाते हैं, दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइडों पे 200 ग्राम कोई भी वस्तु डाली जा सकती है, तो भी ये बैलेंस ही रहेगी। अब क्वेश्चन इसमें हमने x को सॉल्व करना था, तो पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x। तो फर्स्ट टर्म विल बिकम 3/x × x, एंड राइट विल बिकम 6 × x। अब क्या होगा? x विल कट बाई x, 3 = 6x। 3 = 6x। फिर हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, x = 3/6, 1/2. It will be the answer. पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x, we will get this. Then we will do dividing both side by 6, x = 3/6, 1/2. And second question is हमने x का आंसर निकालना है, तो यहाँ पे -2 है, we will say multiplying और we will say dividing both side by -2. इसको हमने दोनों साइड में क्या किया? -2 से डिवाइड किया। -2 is cut, x = इसको कट करेंगे, आया -4, x = -4। ये क्वेश्चंस इस बैलेंस की तरह सॉल्व होते हैं, जैसे तराजू में होता है, दोनों तरफ कुछ प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो गलत हो। इट इज मिस्टेक नंबर 8। Now mistake number 9. 5/0, तो
तो स्टूडेंट से इट इज ए वेरी सिंपल, आंसर इज 0, ये गलत है। स्टूडेंट से 5 इंटू 0 इज 0, 8 इंटू 0 इज 0, यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे भी 0 होगा, परंतु यहाँ पे गलत है। वाई करेक्ट मेथड इज, ये ठीक है। 15 और 5 3 होता है, क्यों? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 1 15, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक आ रही है, इसका मतलब 15 को 5 से डिवाइड करें, आंसर ठीक 3 है। अब ये भी ठीक है। 42/7 इक्वल टू 6, बिकॉज 6 कैन बी रिटन एज 6/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये भी 42, ये भी 42, इसका मतलब ये भी ठीक है। अब हम ये क्यों गलत है? स्टूडेंट्स ने कहा 5/0 इज इक्वल टू 0, 0 कैन बी रिटन एज 0/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आया 5, ये आया 0, तो बराबर नहीं आया, इट मीन्स इट इज रॉन्ग, ये गलत। अब 5/0 0 लिखना गलत है, 7/0 को 0 लिखना गलत है, 11/0 को 0 लिखना गलत है। अब है कि ठीक क्या है? इसका आंसर है अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड है? ये एक लंबा क्वेश्चन है, वो हम किसी दिन बाद में बताएंगे, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। जिसके भी नीचे 0 आएगा उसका हम आंसर अनडिफाइंड बोल देंगे। इट इज मिस्टेक नंबर 9। नाउ मिस्टेक नंबर 10 is 10. Question is a power 5 into a power 3 is equal to a power 15. Second question is a power 8 divided a power 4 is equal to a power 2. Third question is under 7x. Student write 7 into x power half. It is wrong. What is the correct answer? First question is a power 5 into a power 3 means a up to 5 times. A power 3 means a into a 3 times. Now after multiplying a 8 times, it is answer is a power 8. Therefore first rule is if base are same, powers are not multiplied, powers are added. If base is same, we are to multiply, powers are added. Therefore 5 plus 3 is 8. A power 8 is correct, a power 15 is wrong. Second question, a power 8 divided a power 4. A power 8 means a into a up to 8 times divided by a power 4. Now what we get? 4 times it will be cut. Now remaining is a 4 times. Answer A4. Therefore method is, if we are to divide, then powers will be subtracted. 8 minus 4, 4 powers. Answer is a power 4. Method is a power m divided by a power n. It is answer is a power m minus n. Therefore powers are subtracted, but students has 8 divided by 4 2. स्टूडेंट्स ने पावर को डिवाइड किया है, therefore ये गलत है, पावर को माइनस करना है, ये ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज अंडर 7x इज इक्वल टू दिस। स्टूडेंट्स ने ऐसा लिखा है, पर मेथड क्या है? इफ a भी पावर m, तो दोनों की पावर m होगी, पहली रकम की पावर भी m, दूसरी टर्म की पावर भी m। इसका आंसर था पहली टर्म भी अंडर 7x, दूसरी भी अंडर x। अंडर x को हम हाफ पावर लिख सकते हैं। जो भी पावर होगी वो दोनों टर्म्स की होगी, अकेले की नहीं होगी। इट वाज अ थर्ड नियम। इट वाज मिस्टेक नंबर 10। मिस्टेक नंबर 11, प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट। क्वेश्चन इज सॉल्व x स्क्वायर इक्वल टू 16
Student write x is equal to under root 16, x is equal to 4, and it is incomplete or wrong, we can say. Correct method is x is equal to 16, x is equal to minus plus under root 16, x is equal to minus plus 4, x is equal to 4, and x is equal to minus 4 also. Plus minus means we have to take both sides. Now check why. Minus 4 square means minus 4 into minus 4. It is multiplication is 16. Therefore, if x square is equal to 16, x is equal to 4, satisfy it, and x is equal to minus 4 also satisfy it. Both square are 16. Therefore, both are it as answer. Always quadratic equation has two answers. This is mistake number 11. Now mistake number 12. Dividing by x. Question is solve x square minus 5x is equal to 0. Dividing both sides by x. X minus 5 is equal to 0. X is equal to 5. It is also incomplete. Why? See here. Correct method is x square minus 5x is equal to 0. It can be written as x into x minus 5 is equal to 0. We have made it is two factors. Now either first term is 0 or second term is 0. If first term is equal to 0, we will write x is equal to 0. If second term is 0, we will write x minus 5 is equal to 0. Then x is equal to 5. It means it has two solutions. 0 is also a solution, 5 is also a solution, but student has written only one solution. Therefore, this method is wrong, this method is right. इसके ऊपर भी हमने बताया था मिस्टेक नंबर 11 में, वहां पे भी था एक्स स्क्वायर. जब भी स्क्वायर आता है उसके टू सॉल्यूशंस होते हैं. वहां पे प्लस माइनस था. यहाँ पे क्या है, एक आंसर 0 है, एक आंसर 5 है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही आंसर होते हैं. दिस इज द करेक्ट मेथड. नाउ मिस्टेक नंबर 30. 5 power 0, student write 0. X power 0, student write 0. 7 power 0, student write 0. वो कहता है कि जो भी ऊपर 0 आ गया 0 ही है, बट इट इज रॉन्ग. करेक्ट इज 5 over 0 can be written as 5 over 0 multiplied by 5 power 3 over 5 by 3. Now multiplying these, power will be added. 3 plus 0, 5 की पावर आ गया 0 plus 3. नीचे भी है 5 power 3. ऊपर भी 5 power 3, नीचे भी 5 power 3. कट के आया 1. इट मीन्स 5 0 इज नॉट 0, बट 5 power 0 इज 1. हमने मल्टीप्लाई 5 power 3 किया है. हम यहाँ पे 5 power 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, जो कुछ हो कर सकते हैं. इसी प्रकार 7 0 तो भी 1 होगा, 9 power 0 तो भी 1 होगा, 8 power 0 तो भी 1 होगा. किसकी पावर 0 होगी उसका आंसर 1 आएगा. इट इज मिस्टेक नंबर 30. Mistake number 40. Solve this. Student solve 3 into 2x,
6x, 3 minus 5, 15 स्क्वायर। ओपनिंग स्क्वायर फार्मूला लगाया, a minus b स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। 6x का स्क्वायर, दिस इज राइट, 2ab, 2 into 6 into 15, 180x, इट इज राइट। इसका स्क्वायर ये भी राइट। सेकंड स्टेप तो राइट है पर फर्स्ट स्टेप गलत है। वाई इट इज रॉन्ग, सी है। फर्स्ट स्टेप इज 2x माइनस 5 स्क्वायर, तो हमने 2x माइनस 5 का स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 3 को बाद में मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि रूल ये था, हम जानते हैं कि पहले क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट्स के, ये 3 के साथ ब्रैकेट है, 3 इसका मतलब मल्टीप्लाई है। पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 75। मिस्टेक नंबर 15। Mistake number 50. If we are to solve minus 2x is less than minus 4, student do like this, dividing both sides by minus 2, x is less than 2, but it is wrong. Correct method is minus 2x is less than minus 4, dividing by minus 2, x is greater than 2. If we multiply by positive number, sign is not changed, but if we multiply by negative number, sign is changed. स्टूडेंट्स ने देखो साइन चेंज नहीं किया, लेस का लेस लिखा। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज, लेस होगा तो ग्रेटर बनेगा, ग्रेटर होगा तो लेस बनेगा। देखो ये लेस था, अब ग्रेटर बन गया। नाउ इट इज करेक्ट। फर्स्ट इट वाज रॉन्ग बिकॉज रूल इज as 5 is greater than 3, multiplying by minus 2 we get this, greater नहीं होगा, अब less हो जाएगा। but minus 10 is not greater than minus 6, वो less है। क्यों less है? see again, it is 0 and we write 1 2 3 on this, negative number on this, minus 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10, add window। अगर हम किसी नंबर्स को भी रियल लाइन पे लिखेंगे, लाइन के ऊपर सभी नंबर को लिखते हैं, तो जो राइट हैंड होता है वो ग्रेटर होता है, जो लेफ्ट होता है वो लेस होता है। इसलिए माइनस 10 क्या है? लेस है। माइनस 10 इज लेस 10। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। इट इज मिस्टेक नंबर 15। नाउ वी विल डू मिस्टेक नंबर 16। x minus 7 modulus. Student write like this, but it is wrong. If we take x is equal to 2, left hand side will be 2 minus 7 minus 5, and it is modulus is 5, and right hand side will be x is equal to 2. 2 minus 7 is equal to minus 5। अगर हम इसका मॉडुलस ऐसे लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 5 आ रहा है और राइट हैंड साइड का आंसर minus 5 आ रहा है। इट मीन्स इट इज रॉन्ग। नाउ व्हाट इज करेक्ट? correct is a definition of modulus is x modulus is equal to x if x is greater than 0, and x modulus is equal to minus x if x is less than 0.
देयरफॉर इसका आंसर अब क्या आएगा वो हमको ध्यान से देखना होगा। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो उसका आंसर वैसे का वैसे ही होता है। अगर उसका आंसर नेगेटिव आता है तो तब हम साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देयरफॉर इसका मॉडुलस क्या होगा, x - 7 मॉडुलस इज इक्वल टू x - 7 भी ठीक है, पर कब ठीक है अब बताएंगे, और ये भी ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन। पहले वाला कब ठीक होगा, जब x पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। इसका मतलब ये आंसर तो है, पर ये आंसर होगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। जब 7 या 7 से ज्यादा है तो इसका आंसर ये सही है। अगर x का आंसर 7 से लेस है से लेस है, अगर 7 से ज्यादा है तो ये फार्मूला चलेगा, अगर 7 से लेस है तो ये फार्मूला चलेगा। क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये बताती है कि हमेशा नहीं है तो 2 लाइनें हटा दो वो आंसर आ गया। देखना है पॉजिटिव है तो 2 लाइनें हटा के x आएगा, अगर नेगेटिव है तो उसको पहले साइन चेंज करेंगे। ये गलत क्यों आया, अब 2 लिखा था तो 2 - 7 -5 होता है, तो -5 का मतलब आंसर 0 से लेस आ रहा है। इसका मतलब साइन चेंज होना था, 5 नहीं आना था, -5 था, इसलिए ये गलत था। ये आंसर है करेक्ट आंसर। इट इज मिस्टेक नंबर 16। नाउ सी मिस्टेक नंबर 17। डेफिनेशन ऑफ ए स्केयर। हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट इज ए स्केयर, उसका आंसर सिंपल सा होता है a quadrilateral which has 4 equal sides, it is a square, but it is wrong. Why? 4 साइड तो इसके भी इक्वल है and it is a rhombus. इसका मतलब ये डेफिनेशन गलत है। तो करेक्ट डेफिनेशन होगी जिसकी साइड 4 हो और एंगल भी सभी 90 की हो, उसको हम स्केयर बोलते हैं। इसमें एंगल 90 के नहीं होते। कोई स्टूडेंट्स ऐसे बोल दे स्केयर हैज 4 इक्वल साइड एंड 1 एंगल 90 डिग्री तो भी ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ऐसे बोल दे कि 4 इक्वल साइड्स विद डायगोनल्स इक्वल तो भी ठीक है। इसमें डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर हमने स्केयर की डेफिनेशन बोलनी है तो हमको 2 लाइन्स बोलनी होगी। तो पहली लाइन क्या होगी, साइड्स इक्वल, इक्वल साइड्स। फोर की 4 साइड इक्वल होगी और साथ में बोलना होगा कि एंगल 90 डिग्री है। अगर एक लाइन बोलेंगे कि साइड सेम है तो वो डेफिनेशन गलत होगी। जहां हम बोलेंगे कि 4 साइड्स हैं और साथ में क्या है, डायगोनल सेम है, तो भी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अगर हम एक लाइन बोलेंगे कि जिसकी 4 साइड्स हैं उसको हम स्केयर बोलते हैं तो वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि 4 साइड इसकी इक्वल है बट इट इज ए रोम्बस, इट इज ए स्केयर। इट इज मिस्टेक नंबर 17। नाउ mistake number 18, x square plus y square. Student right, it is answer is x plus y.
and it is wrong, because if we take x is equal to 4 and y is equal to 3, the left hand side will become 4 square plus 3 square is equal to 4 square 16, 9 square 3 square 9. It will become 25, 16 plus 9, 25 का रूट होगा 5. Then the left hand side will be 5. अगर ऐसे हम लिखते हैं तो ये गलत है. हम we are checking if x is equal to 4, y is equal to 3, left hand side will be 16 plus 9, 25 this, and right hand side will be x plus y. X is equal to 4, y is equal to 3. तो right hand side क्या बना 7, therefore it is wrong. ये right hand side, ये left hand side. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लिखना गलत है, परंतु ऐसे लिखना ठीक. ये क्या हुआ C है. इसका हमने अंडर रूट लेना है तो पहले हम लेंगे 16 का अंडर रूट, फिर लेंगे x स्क्वायर का अंडर रूट, फिर लेंगे y का अंडर रूट. इसका मतलब ये हुआ कि जब मल्टीप्लिकेशन के सिंबल हो तो हम पहले का अंडर रूट, फिर दूसरे का अंडर रूट, फिर तीसरे का अंडर रूट ले सकते हैं. पर अगर ऊपर प्लस का साइन हो तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले का अंडर रूट ले ले फिर दूसरे का ले ले. प्लस और माइनस में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डिवीजन में ऐसा होता है. अगर यहाँ होता है तो बच्चे इसी गलती को यहाँ ले जाते हैं तो वो गलत हो जाता है. याद रखना है प्लस माइनस के ऊपर अंडर रूट हो तो अंडर रूट अलग अलग नहीं लेना. अगर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अंडर रूट हो अलग अलग अंडर रूट लेना है. नाउ मिस्टेक नंबर 19, x plus 5 square is equal to x square plus 5 square. Student write like this, but it is wrong. Proper method is x plus 5 square means x plus 5 into x plus 5. First we will multiply x with x, then multiply x with 5, then multiply 5 by x, then 5 by 5. First step will be x into x, x square. Second step will be x with 5, 5x. Third step will be 5 into x, 5x. Fourth step will be 5 into 5, 25. And answer will be x square plus 5, 5, 10x plus 25. This will be the correct answer. We can do it by the formula. A plus b square means a square plus 2ab plus b square. वो भी ठीक है. ये नहीं है कि पहले का स्क्वायर किया फिर दूसरे का काम खत्म हो गया. इसमें क्या होता है साथ में 2ab एक्स्ट्रा आता है, वो लिखना होता है. इसका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 10x. यहाँ से हमने देखा है 5, 5, 10x आया, परंतु ये ठीक है. 3x स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर. अगर यहाँ पे 3 टर्म्स भी होते और ऊपर स्क्वायर होता तो पहले फर्स्ट का स्क्वायर फिर सेकंड का फिर थर्ड का. ये नियम क्या हुआ कि प्लस में अलग अलग स्क्वायर नहीं किया जा सकता, अलग अलग क्यूब नहीं किया जा सकता, उसमें फार्मूला है. और अगर प्रोडक्ट में हो ऊपर स्क्वायर हो या क्यूब हो तो अलग अलग स्क्वायर और अलग अलग क्यूब क्या है किया जा सकता है. इट इज mistake number 19 and we have to recover this property. Now treating function as a number.
साइन एक्स प्लस वाई को खोलना है तो बच्चे लिखते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई, इट इज रॉन्ग। इसको खोलना है ऐसे लिखते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। दीज आर फंक्शन, साइन फंक्शन, लॉग फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इसको ऐसे नहीं खोला जा सकता। कईयों के फार्मूले होते हैं, उसको फार्मूले से खोला जाता है, कईयों के फार्मूले नहीं होते, उसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई हो तो उसका आंसर होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक नंबर नहीं है कि नंबर अलग अलग लिख लिया, इट इज ए फंक्शन एंड इट इज वैल्यूज दिस। दीज आर द कॉमन 20 मिस्टेक्स। नाउ प्लीज लाइक, कमेंट and share and subscribe my channel. Thanks for watching.